समटाइम जैसे जो कोल्ड चेन के प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर ने मेंटेन किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी मेंटेन किया, होलसेलर ने भी मेंटेन किया, बट रिटेलर ने नहीं किया, तो उस केस में इज द एंटायर चेन पेनलाइज्ड फॉर दैट, या फिर वो जिसने मेंटेन नहीं की वो पेनलाइज किया जाए? बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में तो सभी को लिया जाए, सबने क्या किया, क्योंकि पता कब चलेगा कि सबने मेंटेन किया। सर, कुछ चीजें हैं जो आप पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में एक बताएंगे कि ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना है एक रिटेल स्टोर। बेसिकली तो आप अच्छे रिटेल स्टोर में जाएं, बैच नंबर, दवा का नाम, प्राइस चेक कर ले, स्टोरेज कंडीशन भी चेक करें। दवा के ऊपर लिखा है अगर टू बी स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्रीज और वो आपको फ्रिज में से निकाल के नहीं दे रहा है, तो आप जरा विचार करना। पहले एक समय होता था, बीच में आया था टाइम जब देखते रहे कि फार्मा में बहुत पैसा है, तो इवन हर बंदा कहता रहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो। तो अब वो क्या ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है या हो रहा है? इंडिया से हम 200 कंट्रीज को माल बेच रहे हैं, तो आप इधर बैठो, पूरी दुनिया आपका मार्केट है, आपका क्या दम है उतना काम, स्काई इज द लिमिट। ओम प्रकाश साधवानी सर, welcome to the Supreet Singh Show. Welcome to our Deep Root Talks. Thank you and namaskar. It's great to be connected to you, Supreet. And then I feel that we can really create awareness about the medicines in such a way that not only patients but all stakeholders, means in the dealers, distributors, industry, and because we are pharmacy of the world, everybody should be benefited from what we are talking to. You have been joint commissioner. You retired as a joint commissioner from Maharashtra FDA. एक मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस था, right from being a drug inspector to retiring as a joint commissioner, जो चेंज हमने एक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखा है और रेगुलेटरीज में देखा है, वो चेंज का क्या एक्सपीरियंस था आपका? My experience is there, but the industry actually started its quite good working, and number of multinational companies and many Indian companies had manufacturing plants in Maharashtra, and then Maharashtra was major hub of manufacturing of the drugs. Like for example, if I am procuring drugs, कहीं से मैं अगर कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाऊंगा प्राइवेट लेबलिंग में, या जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है थर्ड पार्टी में, तो वी लुक एट कि इनके पास WHO GMP सर्टिफिकेशन है या EU GMP सर्टिफाइड या और GLP, ये सब चीजें देखते हैं जिससे हमें पता है कि ये दे विल फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो ये जो आप बता रहे कि ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करके, इंडस्ट्री हैड इंट्रोड्यूस दिस फर्स्ट? Yes, it is introduced by the industry and adopted by the regulator, and then it is converted into regulation. Okay, now any practice, what you can regulate. So enforcement of regulation, regulator को जो enforce करना है, when you want to enforce something, if it is not practical, if it is not possible, it cannot be enforced. Right. Now, we have marched, industry has marched, or even regulation has marched from, if you see, when pharmacopoeia started in India, 1955 was the first pharmacopoeia. It was in one volume, and you had very few tests in that. Identification tests, melting point, limits impurities, and something like that. Today, while we look into IP, what level we have gone into? Yes. Right. तो addendums भी आते हैं, लेकिन क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? Now you are prone to, from identification to impurity profiling of the product. Yes. How much impurities are there? Or how it can, and how. So quality concept. Quality as a concept has changed, is being changed, is evolving. And with that, regulation has to evolve, with that, industry has to evolve, and the quality improvement has to be there. Right? And industry has achieved. If you want to put it in a very different way, let us start from very basics. What is the first basic is that why regulation is required, and why a country, what authority is with the government to put it in regulation. मैं बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, कैसा भी बेचूं, ऐसा क्यों नहीं है? तो everything comes from the Constitution of India. When you say that when we talk of India or any country, it will come from the Constitution. And Constitution में there is one Article 47, which is direction to the state. State means central government or government. That state should work in the direction of improving health parameters of the citizen.
Focus is public health. Purpose is public health. Health parameters are to be improved. Now, for that, government has to work. That constitution mandate is a direction given to the state. Now, state has started working in that direction by creating medical colleges, primary, secondary, tertiary healthcare centers. Now, if you see that you were doctors, when you had only MBBS or MDs or something, now you have specialty, super specialty hospitals and doctors. Every branch there is a development. Now, all these doctors, when they want to perform something or when they want to diagnose something, the diagnostic aids are there. Now, if they diagnose something, they want to treat, you need medicines, right? So, medical colleges are created, primary, secondary, tertiary healthcare centers are created, then diagnostic equipments and then diagnostic tests are created. Then you are creating medicines. Medicines है, अगर आप आइडेंट डायग्नोज करोगे तो मेडिसिन चाहिए. The medicine comes, then comes the test of quality. Every FDA of any state or any country will have mandate what safe and effective medicines. So I have to give safe and effective medicines under Constitution of India. Therefore, how you will be mandating that? Therefore, you give laws. Opening medical colleges, having that rules and regulations and practices and whatnot. Medicines, then quality of medicine, then for that, good manufacturing practices, and that comes from Drug and Cosmetic Act and rules thereunder, right? Mm-hmm. What is the achievement? Achievement is, you can see that I said 1945 pharmacopoeia was this much. Mm-hmm. Today you have 2 or 3 volumes. Yes. You had only 4 or 5 tests. Now you have a big monograph up to going from identification to impurity profiling and everything. In that, what is the achievement is very loud and proud. Achievement can be measured by one very important thing, which is life expectancy. Average life expectancy around independence was around 42 to 45 years. And today, Sukhpreet Singh ji, life expectancy is around 75 years. Average life. Yes, this has massively improved. Right. From 42 to 75, every citizen averagely, you have got it. Means you achieved. In whatever criticism government has got, whatever we criticize our systems of, but you reached from 42 to 75. For this, every worker in healthcare management system is to be complimented. Everybody has done his role from something to today's achievement. Now, this has not come only from these medicines and everything. It has come from various other factors also. One is literacy rate. Education has improved, right? So literacy is improved. Then literacy is improved, so we have become health conscious. Earlier, we used to go to doctor, we used to feel that doctor से नाड़ी देखना है और decide करना है कि मेरे को क्या बीमारी है. Today, I don't go to doctor. Young people I saw, they have gone to a diagnostic center and they are talking of CT angiogram. मेरा CT angiogram कर दो कि मेरे को कोई blockade है कि नहीं. Now your awareness up to that level because of education. This has got bad effects also. It's not required. Why people are wasting time there? But if you go for proper medical system, diagnostics have changed like anything. They can diagnose anything. Right? Presumptive action हो जाता है. तो एक पार्ट हो गया. अभी अगर आप जाए वाटर की क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ वाटर विच वी यूज टू ड्रिंक 30 years बैक, अच्छे नगर पालिकाओं में देयर वाज नो फिल्ट्रेशन प्लांट. यू यूज टू गेट muddy water. You used to use the fitkari and alum and then to purify the water and then we used to take upper decant of water or something like that. Today you have RO plant in every house. Everybody is concerned about the quality of water. Then you get very good water and then how to purify. पहले हम बोलते थे कि गर्म करके पियो, ये करके पियो, कहाँ से कहाँ चले गए. ये इतना डिफरेंस क्यों है? Why doesn't Indian regulations by default become compliant as per US FDA? ये क्या डिफरेंस है? ऐसा है कि आपको वो इकोनॉमी देखना पड़ेगा. अच्छा. अगर आप इंडिया में आज पैरासिटामोल टेबलेट ₹1 में दे रहे हो, यूएस में कितने की देते हो?
आई थिंक वो मेरे हिसाब से $5 से कम तो होगी नहीं। $5 is ₹500. हाँ जी। Now, headache in India to a rickshaw wala, to a labor, to a person. Can he afford $5? वही exactly. So ये I was just coming to that point and you answered it. There are two issues. So we have to provide. It's not that ki medicine given in India is not safe. Medicine given in India is safe, effective, and acting properly and at a reasonable cost. तो ये क्या डिफरेंस, मतलब उनकी रेगुलेटरी में ऐसा मेजर डिफरेंस क्या है? एक बहुत साल पहले एक कंसेप्ट आया था, दैट एग्जांपल प्रोबेबली विल सॉल्व आवर क्वेरीज फ्रॉम वन एंगल, कि मेट्रोनोडाजोल एक ड्रग है जो एमीबाइसिस में यूज होता है. नाउ मे बी अराउंड 80s metronidazole was banned in US. And banning reason was that it has got metallic after test. And then they had some, then it was analyzed why India is not banning metronidazole. At that time, we felt that India में amoebiasis rampant था. Quality of water आज तो बहुत improved है. I'm talking of 1980s again, means for around 45 years back. Amoebiasis, every alternate person was having amoebiasis. Quality of water was not that good. And then our people needed metronidazole because it was very economical treatment sort of that. So diarrhea dysentery हो रहा है तो metronidazole amoebiasis के कारण हो जाता था. Now if you see US that way, quality of water was good. There was no amoebiasis at all. If anybody is suffering from amoebiasis, he is to be immediately hospitalized and he is treated in hospital. Healthcare system है, insurance है, क्या है? No, he will be hospitalized for 3-5 days and they will given IVs and whatever drugs are available. Now, can your economy, under your economy, people can afford that one? And is it possible for them to get hospitalized for diarrhea, dysentery for 3 days due to amoebiasis? It was impossible. So, every country developed their regulation in the way that whatever drugs will be available to them, they will be safe and effective and at the reasonable price. Therefore, you see, when we talk of why IP is different than USP, why we don't follow USP standard, because we don't get that level of correction immediately. But it's not that our drugs are not compliant to that. If you want to make drug compliant to that, our drug is safe, effective, and economical. इसी पॉइंट पे आता है कि लोगों को लगता है कि अगर आप यूएस से आइबुप्रोफेन खरीदोगे तो वो बेटर होगी देन इंडिया. तो कई बार वो लोग, ये एक धारणा होती है कि जब आप यूएस जाते हो, कनाडा जाते हो, तो लोग कहते हैं कि यार ये वाली दवाइयां वहां से ले लेते हैं कि या उन लोगों को भी लगता है कि क्या इंडिया में सेफ मिलेगी, नहीं, क्योंकि वो एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, थॉट प्रोसेस की, अगर इतना प्राइस का डिफरेंस है तो क्वालिटी का भी डिफरेंस होगा. एक चीज मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि इंडियन ड्रग्स पर्टिकुलरली व्हेन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्सेप्ट व्हाटएवर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये वो चीज आती है वो अगर साइड रखे आप, तो अब वी आर हैविंग द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल ड्रग्स. इंडियन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड ड्रग एक्ट ने बताया है कि ड्रग शुड बी कंप्लाइंग विद इंडियन फार्माकोपिया. Indian pharmacopoeia standards have been decided by keeping in mind the sources of the bulk drugs, APIs and additives, excipients available in India. उससे लेके अगर आप ड्रग बनाओगे, वो हिसाब से बनाओगे, फार्माकोपिया के हिसाब से बनाओगे, तो इट विल बी सेफ, इफेक्टिव. ड्रग्स आर वेरी मच सेफ, इफेक्टिव, परफेक्ट बीइंग मार्केटेड इन इंडिया. पर जहां को थोड़ी सी गलत है, वो दैट इज बीइंग taken care by the regulator in a proper way by taking samples, testing and whatnot. But by and large, whatever drugs are being manufactured by the licensed manufacturers in India, they are manufactured in accordance with the good manufacturing practices. They are manufactured in accordance with the pharmacopoeia standards, and they are tested properly by those standards, and they are complying with the standards, and they are effective. और आप अगर ये नहीं होता ना तो 200 कंट्री हमसे दवाई लेती नहीं. अब सर हम बात करते हैं जेनेरिक्स की. टेक्निकली तो ऑल प्रोडक्ट्स आर जेनेरिक्स विच आर ऑफ पेटेंट, वो जेनेरिक हो जाते हैं. बट अब जैसे अब जन औषधि भी है और जेनेरिक चेन्स भी हैं, जेनेरिक फार्मेसी की चेन्स भी हैं, और जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं कि विच आर नॉट प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर बट इन अ वे, और वो जेनेरिक ऑल्टरनेट बन जाता है बड़े ब्रांड का. तो
are those safe to be bought? राइट, दे आर सेफ फ्रॉम वन एंगल. जैसा मैं पहले पहले बोला कि इंडिया में अगर लाइसेंस प्रोडक्ट है तो इट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट हैज टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन. अब फार्माकोपियर स्टैंडर्ड है तो फार्माकोपियर कंप्लाई करना है उसने, राइट. अगर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी है तो पेटेंटेड व्हाटएवर स्पेसिफिकेशंस आर प्रोवाइडेड उस पर कंप्लाई करना है. तो प्रोडक्ट कंप्लाई तो करता है, प्रोडक्ट कंप्लाई करता है और मेडिसिन लगभग सिमिलर होगी एक्सेप्ट वन पॉइंट. बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस ऑफ मेडिसिन कुड बी अ क्वेश्चन कि भाई आपको एक दवा का रिलीज पैटर्न ऐसा ऐसा था और ये जो दूसरी दवा है मे बी सेम नाम की है, सेम स्टैंडर्ड पे है, उसका रिलीज पैटर्न वैसा है या नहीं है. तो उसमें बायो इक्विवेलेंस देखना एक पॉइंट है जो इंडिया में 2017 तक मैंडेटरी नहीं था. 2017 के बाद में ये भी मैंडेट किया गया है कि BCS क्लासिफिकेशन 2 और क्लासिफिकेशन 4 में, क्लास 2 और क्लास 4 में जो दवाई आती है उनको उनका ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म है तो उसका बायो इक्विवेलेंस टेस्ट करना जरूरी होगा जी. लेकिन जो 2017 के बाद में बना रहे उनके पहले वाली जितने हैं वो सभी वैसे के वैसे अवेलेबल है. तो वी आर नाउ मूविंग टू बायो इक्विवेलेंस लेवल. तो बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग ये वो मैंडेटरी कर दी गई है. वो चीज होगी तो बायोलॉजिकली प्रोडक्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा. लेकिन वन हैज टू बी वेरी श्योर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो है इंडिया में उसके हिसाब से दवाइयाँ कंप्लाई करती है. एक बात और है कि डॉक्टर ने अगर कोई ब्रांड लिखा है तो ब्रांड को सब्स्टिट्यूट करना ड्रग एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है. पर डॉक्टर्स को बोला जा रहा है एज पर देयर एथिक्स कि यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब द ब्रांड्स, यू शुड प्रिस्क्राइब द नेम ऑफ द सॉल्ट विद द इन द जेनरिक नेम. तो ऐसे केस में क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. पर्टिकुलरली इट इज अफेक्टिंग ब्रांड्स वन वे बट देन बिकॉज इकोनॉमिकली अवेलेबल है जेनरिक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना या ये ऐसी चीजें उनको प्रमोट कर रही है तो आ रही है. तो क्वालिटी पे तो डाउट मत लीजिए उतना, थोड़ा बहुत ये फर्क हो सकता है पर्टिकुलरली इन बायो इक्विवेलेंस, पर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब पे तो वो कंप्लाई करेगी. और स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब पे कोई भी मेडिसिन कंप्लाई नहीं करती है, कोई भी कंपनी की हो तो रेगुलेटर उसके ऊपर है. जैसे सर हम इसी की बात करते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक कॉम्पोजिशन फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल की बात करते हैं, वो एक लीडिंग ब्रांड के लिए भी बना रहा है जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, और जेनेरिक में भी वो बना रहा है किसी और कंपनी के लिए कि जो जेनेरिक फॉर्म में बिक रहा है. तो उस केस में कई बार ये वाला पॉइंट आ जाता है कि बायो इक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी, तो क्योंकि एक ही प्लांट बन रहा है तो जैसे उसकी क्वालिटी होगी वैसे इसकी क्वालिटी होगी. बट हालांकि इंडिया में अभी पेशेंट इस लेवल पर नहीं देखते तो वो वहां नहीं जाते. तो इस केस में क्या जेनेरिक इक्वली कंप्लायंट हो जाता है? देखिए वो दो चीज है उसके अंदर. इवन इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर by the same process by following same excipients and with same technology तो वो सेम होगी. लेकिन हर एक्सीपिएंट या हर प्रोसेस का असर होता है. तो अगर उसका कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में और मीन्स अगर मल्टीनेशनल कंपनी ने या कोई बड़ी कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने उसको कोई फार्मूलेशन ऐसा दिया है जो उसको रिवील नहीं करना है और कुछ एक्सीपिएंट्स है जो उसने जो उन्हीं के लिए नहीं उनके लिए कर सकते हैं तो शायद रिजल्ट सेम नहीं भी आए. अच्छा. लेकिन जैसा मैं बोला कि एक्सीपिएंट्स के ऊपर वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन ये सब चीजें है तो उसका कितना फर्क पड़ेगा वो अलग चीज है. लेकिन प्रोडक्ट इज कंप्लाइंग टू द स्टैंडर्ड तो वो कोई इशू नहीं बनता है. लेकिन बायो इक्विवेलेंट, बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है. तो सर कई बार ये जैसे आप बायो इक्विवेलेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एफिकेसी की बात भी मैं छेड़ना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जब टेस्टिंग होती है किसी प्रोडक्ट की सारे पैरामीटर्स सही आते हैं, बट जब मार्केट में जाता है एफिकेसी इश्यूज आते हैं, तो वो क्या रीजन आ सकता है? वो क्या है, देखिए बेसिकली ड्रग इज अ केमिकल और बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी का इशू है. ड्रग के स्टेबिलिटी पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी चीज़ों का फर्क पड़ता है. तो इसके लिए स्टेबिलिटी स्टडीज करी जाती है ड्रग के ऊपर. अब आप इंडिया में ही देखेंगे वेरिड कंडीशन है. कश्मीर का टेम्परेचर क्या है, वैसे ही चेन्नई में टेम्परेचर क्या होगा, मुंबई में ह्यूमिडिटी क्या है और नागपुर में ड्राई
नेस कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ऐसी चीज़ों के इफेक्ट ये प्रोडक्ट पे पड़ते हैं। और इसके लिए इन वॉट एवर कंडीशंस वी आर विल बी कीपिंग द प्रोडक्ट, वो हिसाब से एंटिसिपेट करके उनके स्टेबिलिटी स्टडीज के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर टैबलेट कैप्सूल पे एक्सपेक्टेड ये है, या एनी मेडिसिन एक्सपेक्टेड ये है कि इट शुड रिटेन इट्स पोटेंसी टिल इट्स एक्सपायर। एक्सपायरी तक उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आना चाहिए अंडर ऑल कंडीशंस। अंडर ऑल कंडीशंस। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो गर्मी में रख दिया इसके लिए नहीं, वो अगर उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशन लिखी है टू बी स्टोर्ड बिलो 25 डिग्रीज और वो उस 25 डिग्री से बिलो पे रखी गई है तो पास होनी चाहिए। वो अगर हायर पे रख दी तो फेल हो सकती है। तो इसके लिए बोला है कि एवरीबॉडी डीलिंग इन मेडिसिन हैज टू बी क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड दिस रिपरकशंस ऑन द मेडिसिन, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड और लॉन्ग टर्म जो चेंबर्स है, स्टेबिलिटी चेंबर्स में इसीलिए रखा जाता है कि स्टडी हो सके, पता चल सके क्या होगा। तो वो करना जरूरी है और इसके लिए उसकी स्टोरेज कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। इसके लिए आप देखेंगे लाइसेंस में बोला गया है कि लाइसेंस मेडिसिन शुड बी इन चार्ज ऑफ द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू डील विद दैट। तो उसने क्या करना है, सिर्फ मेडिसिन बेचना नहीं है, स्टॉक करने के लिए लाइसेंस नहीं है, वो मेडिसिन की क्वालिटी रिटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर ले जाने के बाद भी उसको जो स्टोरेज कंडीशन लिखी है उसके ऊपर वो स्टोरेज कंडीशन में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो कोई चीज़ें फ्रीजर में रखनी है तो फ्रीजर में रखनी है, फ्रिज में रखनी है तो फ्रिज में रखनी है, 25 डिग्री से कम में रखनी है। अब 25 डिग्री से कम में रखनी है, हमारे यहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री चल रहा है, तो डू नॉट रिटेन दैट। पर मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने स्टोरेज कंडीशन लिख दी, आप उस पर रखो। अब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि दवा हम खराब कर देते हैं बराबर नहीं रख के। आपने किसी डीलर की आइसक्रीम पिघली हुई देखी है? ट्रू राइट। नाउ आइसक्रीम क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि वो पिघल जाएगी तो बिकेगी ही नहीं। पर दवा में ये चीज छुपी है कि हमने अगर बराबर नहीं रखी तो दिखती नहीं, लेकिन मेरे पेशेंट को फायदा नहीं हो सकेगा। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कास्टेड ऑन द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट मेडिसिन टू सी दैट cold chain or storage arrangements or whatever storage conditions are there, they are maintained. अगर वो मेंटेन नहीं हुई तो क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है एट ऑल लेवल्स। क्योंकि समटाइम जैसे जो कोल्ड चेन के प्रोडक्ट्स हैं सर, मैन्युफैक्चरर ने मेंटेन किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी मेंटेन किया, होलसेलर ने भी मेंटेन किया और उसी हिसाब से किया, बट रिटेलर ने नहीं किया, तो उस केस में एफिकेसी उसकी इफेक्ट होगी। तो उस केस में इज द एंटायर चेन पेनलाइज्ड फॉर दैट, या फिर वो जिसने मेंटेन नहीं की वो पेनलाइज किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में तो सभी को लिया जाएगा कि सबने क्या किया, क्योंकि पता कब चलेगा कि सबने मेंटेन किया। हाउ रियली यू विल हैव टू प्रूव दैट यू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एवरीबॉडी मेंटेन दैट। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग इंस्पेक्टर जब सैंपल निकाल रहा है उसका, तब एट व्हाट टेम्परेचर इट वाज स्टोर्ड, therefore we tell them to write on the top the temp sample drawn when stored under room temperature, sample drawn from the air conditioned premises, sample drawn from the refrigerator, right? एक वो चीज लिखिए यार, अगर पॉसिबल है आज के जमाने में विद ऑल वेदर कंडीशंस, आज का टेम्परेचर क्या चल रहा है, सैंपल ड्रॉन एट दिस कंडीशन, एंड देन वो पर्टिकुलर एरिया की वेदर कंडीशन अभी रिकॉर्डेड है, पूरे रिकॉर्ड इज अवेलेबल नाउ, राइट? तो किसने कहाँ रखी, अभी इफेक्ट कहाँ तक आता है पता है क्या, कि मैं एक मेरी दुकान के बाहर काउंटर है, उसमें रख दी और डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही। मेरी दुकान में प्रोडक्ट्स हैं हजारों और उसमें कम से कम 500 प्रोडक्ट्स भी लिखा है टू बी स्टोर्ड बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरे यहाँ टेम्परेचर चल रहा है 44, 43, 45। आई एम नॉट एयर कंडीशन, राइट? दुकान है होलसेलर की, उसने रेफ्रिजरेटर रखा है 165 लीटर्स का और 4 पेटी टिटेनस ऑक्साइड लेके आ गए। तो ऐसी चीजें जो है ये गलत है। गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस आर टू बी फॉलोड। ये बहुत कॉमन है। जैसे मैं, क्योंकि आई ट्रैवल अ लॉट समटाइम्स, सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ करेक्शंस ओवर द इयर्स। जैसे कई बार ऐसे होता था कि वी डिनाइड गिविंग गुड्स टू समबडी जिसके स्टोरेज हमें लगा कि ये नहीं आगे करेगा, and because you know that at the end of the day when it reaches the patients कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है। and when जब हम बात करें it is about public safety, public health की बात होनी चाहिए और उसी से बिजनेस होता है। तो अगर पब्लिक हेल्थ ही अगर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो
बिजनेस का बेनिफिट नहीं है फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये अभी भी एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली इन इंडिया। जब आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, डिफरेंट उस हिसाब से हैं कि अगर 25 डिग्री से कम रखना है तो वो या तो एसी का खर्चा बचाने के लिए या और चीजें करने के लिए, एसी लगा तो है पर चल नहीं रहा। ऐसा हो गया, मेरी कार एसी हो गई, मेरा घर एसी हो गया, पर मेरा दुकान एसी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पहले डाउट था कि एसी में पेशेंट आता नहीं। अभी लेकिन आप देखिए, जितने बड़े बड़े चेन्स खुल गए हैं, जितने बड़े बड़े मार्केट्स खुल गए, सभी एयर कंडीशन है। हर आदमी को कंफर्ट चाहिए। पेशेंट आने के बाद में आपके दुकान में अगर कंफर्टेबल फील करेगा तो शायद मेडिसिन के साथ साथ कॉस्मेटिक भी परचेस कर लेगा, कुछ कन्फेक्शनरी भी परचेस कर लेगा। टू रिटेन योर केमिस्ट, आई वुड एडवाइस दैट यू शुड प्रोवाइड वेरी गुड एटमॉस्फेयर, very good ambience in the shop, and particularly when it is required for maintaining quality of the medicines, because quality is utmost important. पेशेंट को क्वालिटी नहीं मिलेगी, अगर आपकी दवा से पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है तो आपको आपका बिजनेस करने का मतलब बनता नहीं है। और आप जो भी शॉर्ट टर्म में पैसा बचा लोगे, दैट अल्टीमेटली यू विल बी लूजर इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट विल फाइंड आउट अ वेरी गुड शॉपकीपर हु इज मेंटेनिंग दिस। क्योंकि आप ये समझिए कि पेशेंट अभी अलर्ट हो गया है। पेशेंट अभी, मैंने लास्ट 10 साल में एक्सपायर्ड मेडिसिन मुझे बेची गई ऐसी कंप्लेंट नहीं देखी। ओके, पेशेंट इज अलर्ट। यस, पेशेंट अलर्ट है, राइट। आज 10 साल में ये कंप्लेंट नहीं है कि मुझसे ज्यादा पैसे लिए गए। 10 साल पहले होती थी कि मुझसे ज्यादा पैसे लिए गए, क्योंकि पहले पेशेंट रेट देखता है, इसके ऊपर क्या लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो पेशेंट अवेयर है, और पेशेंट बीइंग नाउ नोइंग दैट what are storage conditions written on the product. If the product is stored in front of sunlight and it says that it is to be stored in cool place, patient will reject your product. सर, कुछ चीजें हैं जो आप पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में एक पूरी बताएंगे कि ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना है एक रिटेल स्टोर में। हाँ, तो बेसिकली तो आप अच्छे रिटेल स्टोर में जाएं, वहां पर आपका प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करें, फार्मासिस्ट की सर्विसेज इंसिस्ट करें कि भाई मुझे फार्मासिस्ट ने देना चाहिए दवाई, और उसका बिल मांगे। बिल मिलने के बाद में दवाई चेक कर ले, जो दवा बिल में लिखी है वही बैच नंबर की दी है कि नहीं दी है, बैच नंबर, दवा का नाम, प्राइस चेक कर ले। और आज जैसे सुप्रीत सिंह ने नया पॉइंट लाके दिया है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कि स्टोरेज कंडीशन भी चेक करे। दवा के ऊपर लिखा है अगर टू बी स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्रीज, और वो आपको फ्रिज में से निकाल के नहीं दे रहा है, तो आप जरा विचार करें कि इससे लेना कि नहीं। ये भी चेक कर लें कि फ्रिज ऑन है या नहीं। ऑन होता है। फिर आपके एरिया, फिर आगे की बात हुई वो, और फिर नेक्स्ट आया कि पूरा पढ़ने के बाद मेडिसिन की लेवल को पढ़े। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं सभी इनको एडवाइस करने की कि कृपया एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जाए हर एक मेडिकल स्टोर में। पेशेंट को अगर कोई चीज़ अच्छे से पढ़नी है तो देखे, या हम हमारे घर में भी एज अ कंज्यूमर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखे कि कब पढ़ के देखे कि एक्सपायरी डेट बहुत छोटे इसमें लिखी है, छोटे छोटे वायल है, छोटे, क्योंकि पैकिंग कंप्रेस होते जा रही लॉजिस्टिक बचाने के लिए। जी, तो नहीं पढ़ा जाता तो उसको जरा पढ़े। लेबल पढ़ना, लेबल समझना, और स्टोरेज कंडीशन और दवा कैसे ली जाए उसके इंस्ट्रक्शन कब वहाँ होते हैं, भाई कैसे ली जाए, कैसे यूज किया जाए, और उसके ऊपर अगर इंस्ट्रक्शंस फॉर पेशेंट्स हैं तो वो पढ़ा जाए और उसको जाए। और आपको कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो आप अपने डॉक्टर को या केमिस्ट को इमीडिएट बताएं कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है दवाई से। और क्यूआर कोड अगर वहाँ है तो क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन भी आप ट्रेस करके चेक करके देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो जितना ग्राहक जागरूक होगा, जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन चला था, उसमें हमने ये चलाई थी मिश्रा जी के साथ में कि एक्सपायरी डेट चेक करो, प्राइस चेक करो, बैच नंबर चेक करो, इंस्ट्रक्शन चेक करो, दवाई जैसी बताई गई वैसी लो, और दवा का डोज मिस मत करो। जैसा आपको बोला है दवाई, कोई सवेरे बोला है, खाने के बाद बोला है, खाने के बाद बोला है तो खाने के बाद लीजिए, कोई खाने के पहले बोला है तो खाने के पहले लीजिए, कोई चीज़ बोली है कि दूध के साथ मत लीजिए तो दूध के साथ मत लीजिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं, एक या मेडिसिन पे लिखे 2, या फार्मासिस्ट आपको दे रहा है वो 3, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए तभी सेफ रहेगी। आप ये समझिए कि दवा एक स्पेसिफिक तरीके से एक हिसाब से असर करती है, तो अगर उसको पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ समझा जाएगा, लिया जाएगा, तभी फायदा हो। एक एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कई बार आता है कि अभी रिवाइज शेड्यूल आया, तो कई बार जैसे एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं कि जो पहले जो जीएमपी था इसका मतलब वो सही नहीं था,
जो पहले जो रेगुलेटरी थी, जो स्केड्यूल एम था, जो पहले स्केड्यूल एम था, जो सॉरी जीएमपी का, तो पहले जो स्केड्यूल एम वो सही नहीं था कि अब इसको रिवाइज कर रहे हैं और एकदम ही इतना मैसिव चेंज ला रहे हैं। तो ये रिवाइज स्केड्यूल एम को लेके जो इतना डाउट है अभी भी लोगों में, हालांकि ऑलमोस्ट 2 साल और प्लस एक्सटेंशन करते करते अभी काफी टाइम निकल चुका है और मैक्सिमम लोगों ने कंप्लाई भी कर लिया है। तो ये एक इफ यू कैन डायरेक्टली एड्रेस टू द मैन्युफैक्चरर्स, टू द एंटरप्रेन्योर्स, राइट, दिस इज, सी देखिए, क्वालिटी बेंचमार्क है, क्वालिटी इवॉल्विंग है। क्वालिटी को हम अगर इम्प्रूव करते नहीं चले जाएंगे ना जैसा, तो हम पीछे रह जाएंगे। और अगर हम पीछे रह गए ना, तो क्वालिटी अगर हम नहीं दे पाए या क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो बेसिकली हमारा एक्सेप्टेंस इन द वर्ल्ड मार्केट कम होता चला जाएगा। जैसा आज हम बात करें कि जो शेड्यूल एम आया है वो WHO के कंप्लायंस पे है। अब WHO ने जो चीज़ 10 साल पहले मैंडेटरी कर दी पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए, वो नॉर्म्स दे रहे हैं, वो अगर आज हमारी इंडस्ट्री आज भी नहीं फॉलो करेगी तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर क्या होगा, विल स्टार्ट लूजिंग मार्केट इनटू द एरियाज वेयर दे आस्क फॉर WHO GMP, जी राइट। अब WHO GMP इम्प्रूव करेगा या कोई भी शेड्यूल एम भी इम्प्रूव कर रहा है, तो क्या इम्प्रूवमेंट आई है? इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी है। मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लास्ट शेड्यूल एम से कोई चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट वैलिडेशन ऑफ द थिंग्स। हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या? मैं बोला क्लीन है, मेरा एरिया क्लीन है, इज इट क्लीन? वेरीफाई करना। मैंने एक सपोज क्लीनिंग किया विथ मॉपिंग और विथ डिसइंफेक्टेंट, माय डिसइंफेक्टेंट वाज इफेक्टिव और नॉट, ये वेरिफिकेशन कर रहा है जो हम पहले करते नहीं। पहले एक समय होता था, बीच में आया था टाइम जब देखते रहे कि फार्मा में बहुत पैसा है, तो इवन हर बंदा कहता रहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो, प्रॉपर्टी डीलर भी हो या कोई भी हो। तो अब वो क्या ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है या हो रहा है? नहीं, ट्रेंड तो एक बात, यू ब्रॉट मी टू अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। बात ऐसी है कि आप 10-20 साल 15-20 साल पहले का मेरा लेक्चर या कुछ सुनोगे तो था 20,000 करोड़ इंडियन मार्केट डोमेस्टिक, 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट। टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ 2,40,000 करोड़ एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये जो ग्रोथ हुई है ना, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हम बात करते हैं 6 से 8%, दिस मार्केट वी आर टॉकिंग ऑफ 15 to 21%। अभी उससे भी ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस में बात करने लग गए ये। तो हमारी इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, ग्रोथ भी ऐसी है कि दुनिया 8% बढ़ रही तो हम 15-20% बढ़ रहे। दुनिया में हम पहले पूरे दवाइयाँ इंपोर्ट करते थे, आज उससे ज़्यादा जितना हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करते उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाजार बढ़ रही है, तो ज्वेलर भी आएगा, एंटरप्रेन्योर तो कोई भी आएगा। एंटरप्रेन्योर्स आर वेलकम, बट विद द प्रोफेशनल टेक्निकल मैंडेट, कि आप प्रोफेशनल टेक्निकल लोगों को लेके अगर इंडस्ट्री चलाओगे, मैनेज करो एज अ एंटरप्रेन्योर, बट चलाओ प्रोफेशनली परफेक्ट टेक्निकल, तो इसके जैसा मार्केट शायद ही कोई प्रोडक्ट नहीं, इतने इसके जितना मार्जिन या इतने इसके जितना पोटेंशियल या इसके जितना एक्सपोर्ट का पॉसिबिलिटी, इसका जितना डोमेस्टिक मार्केट में पॉसिबिलिटी शायद ही कोई लाइन में है। मे बी IT इंडस्ट्री में भी डिफरेंट देन दिस, IT इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पर प्रोडक्ट लेके टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आपके सामने क्या सन फार्मा, थट, क्या टोरेंट, क्या लुपिन, क्या अल्केम, क्या फार्मेड एंड व्हाट नॉट, डाबर एंड एवरीथिंग। दुनिया में हमने बहुत बड़े बड़े कंपनीज इंडियन लोगों ने पैदा कर दी, मल्टीनेशनल्स बहुत इंडिया में फ्लरिश हुई है। इंडिया से हम 200 कंट्रीज को माल बेच रहे हैं, तो आप इधर बैठो, पूरी दुनिया आपका मार्केट है, आपका क्या दम है उतना काम है, स्काई इज द लिमिट। एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम सन फार्मा टू बिकम नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया और टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड, और बायोकॉन, या ऐसे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स ये बता रहे हैं कि अगर आप टेक्निकली परफेक्ट पेशेंट सेंट्रिक माइंड से बिजनेस करते हो और बिजनेस में सब चीजें लगा देते हो आपकी प्रोफेशनली, तो आपको कोई, यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल। आप अभी थ्रू योर कंसल्टेंसी सर्विसेज आप कई कंपनियों से मिलते होंगे, बड़ी कंपनियों से भी आपका इंटरेक्शन होगा, कई मिड लेवल की भी और छोटी कंपनियों से भी। तो ये क्या
एक डिफरेंस होता है कि वो जो बड़ी कंपनी जिस वजह से बड़ी हुई होती है और छोटी और मिड लेवल की कंपनी वो नहीं बन पा रही होती, तो वो क्या अप्रोच में फ़र्क आता है? बेसिक बात ऐसी है कि वापस वहीं आ गए अपन प्रोफेशनलिज्म पर। हम जितना प्रोफेशनली करेंगे उतना परफेक्ट करेंगे। जब परफेक्ट करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। दो चीज से आता है एक्सेप्टेंस। एक तो क्वालिटी तो आपको बनानी पड़ेगी। मैंने क्वालिटी बनाई है, क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैंने प्रोफेशनली उसको प्रमोट करना पड़ेगा। प्रोफेशनली प्रमोट करना पड़ेगा तो सही डॉक्टर्स चुनने पड़ेंगे, उनको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। तो एस्पेक्ट दो है, मैंने बनानी है क्वालिटी, मैंने प्रमोट करनी है क्वालिटी, मेरी क्वालिटी है ये बता के भी देना है, राइट। तो मैं कब कर पाऊंगा ये तीनों चीजें, कब कर पाऊंगा? when I will be able to talk with conviction with some professionalism what I am. कन्विक्शन कहाँ से आएगा? यस, कन्विक्शन आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई? नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगा? लर्निंग से। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, अच्छा, पूरी क्रोनोलॉजी है। टू टेकिंग टू नॉलेज, टू गेनिंग कॉन्फिडेंस, देन गेटिंग कन्विक्शन। तो नॉलेज, लर्निंग क्वालिटी, knowing quality, implementing quality professionally, getting confidence that I'm having quality product, you can conviction of quality will be there. अभी आप बोलो प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ, प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी नॉन यू आर टॉकिंग ऑफ, हाँ, प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम पढ़ाओ, टेस्ट करो, परफेक्ट आदमी बनाओ, नॉलेज दे दो उसको, कॉन्फिडेंस दे दो, कन्विक्शन से जाके बात करें। प्रोडक्ट में भी क्वालिटी है, आदमी में भी क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्वालिटी है। एवरी पर्सन इज प्राउड ऑफ क्वालिटी, एवरी पर्सन नोज व्हाट इज क्वालिटी, एवरी पर्सन इज क्रिएटिंग क्वालिटी फ्रॉम इन्वेंशन, डिस्कवरी ऑफ अ प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट to from clinical trial to bioequivalence to bioavailability to manufacturing processes to quality control processes, quality assurance. Then field force having that much confidence in your quality to talk with that conviction with the professional doctors and promoting that product, and then your marketing team having that much professional knowledge to promote your product and place your product and position your product in that market in that way. So this is a combined effect of everything. इसमें एक भी कमजोर हुआ ना तो प्रॉब्लम होगा। ये परफेक्ट ब्लेंड, ये पॉडकास्ट इसलिए भी हुआ, आपने बी फार्मेसी की है, फिर उसके बाद आपने 3 साल यू वर्क विद ऑर्गेनॉन इंडिया लिमिटेड, आपने फील्ड में भी काम किया एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देन फॉर 5 years यू हैव बीन अ प्रोफेसर एज वेल, एकेडमिया में भी आपने काम किया, फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर बने एंड देन जॉइंट कमिश्नर। नाउ यू रन अ कंसल्टेंसी फर्म एंड यू हैव एक्सेस टू मल्टीपल लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। So I personally have learned so much today, और एक चीज वो आपने वैलिडेट कर दी, the more you learn ultimately the more you earn। लर्निंग से ही अर्निंग है, तो पहले तो लर्न मोड पे जाना पड़ेगा। टू कंटिन्यूसली लर्न, क्योंकि क्या है कि दुनिया और चीजें इतनी तेज बदल रही है, अगर आप उसके साथ चेंज नहीं हुए ना तो आप रह जाएंगे। तो चेंज होना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआई और टेक का क्या रोल रहने वाला है इसमें, अपने फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर की एडवांसमेंट में, और इंडिया में इसका कितना बड़ा रोल रहेगा? See, as far as I see that particularly where you will be using this AI यूज करिए आप। लिटरेचर सर्च होता था क्लिनिकल ट्रायल के पहले, लिटरेचर सर्च होती थी, उसके अंदर बहुत टाइम जाता था। नाउ AI कैन हेल्प यू देयर। टेक हेल्प ऑफ AI, but where you know that what AI is giving is right or not. So you should be able to have right mind to understand that AI. But you can refer back to whatever is being brought in there. I will say that let AI provide you data, but not the decision. You take the decision. But AI will be definitely helpful in research, in formulation development, and in diagnosis, particularly in softwares. How to interpret something, but definitely it will not be everything. It will be one of the additional tool to our industry in all the fields. Take it as an additional tool, and then speed will increase. Speed of taking decision will increase. That will give you all round
speed will be there in from development of a product to getting into market. From product design to getting speed could be there. Speed could be achieved that way, and somewhere cost can be reduced. No, this is actually मैं पीछे लंदन टेक वीक में जब लास्ट ईयर था तो वहाँ पे ड्रग डिस्कवरी की बात हो रही थी अगर जनरेटिव एआई के थ्रू, तो ये जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल अलाइन होती है उस चीज़ के साथ. एंड यस, इफ़ वो डिसीजन मेकिंग ह्यूमन के पास ही रहेगी हमेशा और रहनी भी चाहिए. और मेरा एक भांजा है, यही लाइन में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है. ही सेड दैट इज अ वेरी ट्रांजिटरी फेज. जैसा आपके पास मोबाइल आया था ना, पेजर आया, फिर मोबाइल आया, फिर आपके पास स्मार्टफोन आ गया. तो यू आर व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एआई, यू आर टॉकिंग ऑफ पेजर. वेरी सून इट कैन बी ऑब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस विल टेक ओवर. व्हाट इज दैट? आई रियली डोंट नो. आई विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से you have to talk of now absolute intelligence. तो AI आर्टिफिशियल से एब्सोल्यूट AI हो जाएगा. Yeah, you have absolute intelligence. Now, what is absolute intelligence? Let us start learning that. No, but thank you so much. I wanted to touch many more topics. But वो बातों का flow इतना अच्छा जा रहा था. I didn't want to interrupt, and because I was enjoying and learning myself a lot. और ये चीज़ें आई एम नॉट श्योर कि ये पहले कभी बात भी हुई है जो आज हमने शायद बात की है, और ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए. एक बेसिक बात ऐसा है कि मैं बहुत इंडिया के सभी ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में इंटरेक्ट किया हूँ. आई हैव बीन टॉकिंग टू देम ऑन इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, इंप्रूविंग इन्वेस्टिगेशन स्किल्स ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स. सो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बढ़ानी है, ड्रग कंट्रोल को एक पावरफुल करना है. ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स जितने पावरफुल रहेंगे, particularly when their concentration is on the catching counterfeit drugs, एक मेजर लाइन है जहाँ क्राइम हो रहा है जो पेशेंट को लिए सबसे हार्मफुल है वो. फिर दूसरी है कि जो दवाइयाँ बन रही है वो क्वालिटी की बने. तीसरा, दवाइयों के हार्मफुल इफेक्ट्स कम हुए. तो ये तीनों चीज़ों को पेशेंट को ध्यान में रखे हुए आज तक रेगुलेटर, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स एंड देन एकेडेमिया एंड देन केमिस्ट एसोसिएशन एंटरप्रेन्योर में आगे, वो भी इन सब ने मिलकर जो काम किया है, दिस होल इकोसिस्टम हैज टू वर्क एंड बी वेरी विजिलेंट एंड अलर्ट. ये पूरे प्रोफेशन में जब भी दवा के बारे में आपको कोई भी गलत न्यूज़, गलत चीज़, गलत प्रैक्टिस, गलत व्यवस्था, गलत इफेक्ट, साइड इफेक्ट, काउंटर प्रेजेंस ऑफ काउंटरफीट, NSQ, ऐसा कुछ भी आता है तो आप अलर्ट हो जाइए और पूरे सिस्टम को अलर्ट कीजिए, क्योंकि इस एक पेशेंट की जान बच सकती है. अगर मैं एक कोई फार्मूलेशन गलत है, या समझिए एक कप सिरप की बोतल में अगर डाइथिलीन ग्लाइकॉल नहीं जाता तो एक बच्चा बच सकता था. राइट. तो एक एक बॉटल इंपॉर्टेंट है. प्रोफेशनली मैन्युफैक्चर करना, प्रोफेशनली बेचना, प्रोफेशनली बनाना और प्रोफेशनली प्रमोट करना और प्रोफेशनली डॉक्टर ने देना. क्योंकि हमें अगर सोच रखेंगे कि इट इज नॉट जस्ट one tablet or one piece of syrup, it is one life. patient, one life. So हम सबका बिजनेस भी क्यों बढ़ा है कि शायद हमको भगवान ने दुआएं भी दी है कि हमने लोगों की जानें बचाई है, पर अगर हमने उसमें कुछ गलती करी होगी जिसके कारण लोगों की जान जाती है तो उसकी बद्दुआ भी हमें लगेगी. एकदम स्पिरिचुअल ग्राउंड पे आप चले जाए तो ऐसा है. बट देन व्हाई दिस प्रोफेशन इज developing very fast? Because we have been doing good to the humanity. So let us see that what is good to the humanity, what is best for the patient. All best practices to be adopted, all bad practices to be immediately stopped, all bad practices to be curbed and to be rooted out from the system. Then only will be the great pharmacy of the world. And let us be great pharmacy or healthcare provider of the world. Thank you so much, Sadhwani sir. अब अभी हम बॉम्बे से स्पेशली यू हैव कम टू दिल्ली फॉर दिस स्पेशल एपिसोड, एंड हालांकि वी हैव लॉन्ग टाइज, सो माय फादर एंड मैं तो ऐसा है कि दिस इज माय पैशन. द पैशन डेवलपमेंट ऑर्गेनोन इज वन ऑफ द मेजर कड़ी, एंड दैट जगदीप सिंह एंड माई सेल्फ both were in the same batch and we are trained on the same things. And then why, I don't know, I became regulator, he became entrepreneur, but it could have been vice versa also. Therefore, I feel
that all of us, anybody who is in the any field of promoting medicines, manufacturing medicines, selling medicines, all of us are having only one common point, that we want that patient should get the benefit, and all of us are working in the direction. Your company and even your this podcast is working in the direction that patient should get benefited. So in the interest of the patient, from topmost regulator, that is God, from God to everybody is feeling that patients should be safe and all medicines should be effective. They should be available, accessible, affordable. Today we will not discuss about affordability, but then other day we will discuss. They should be affordable and they should provide benefit to the patient, should not harm the patient. They should be harmless. With this prayer, I feel that I am obliged to your company that you have given me this opportunity to see that I put up another topic in my hobby of my passion of providing healthcare to the patients. Thank you. Thank you so much. And how was your experience coming on the Supreet Singh show? It was lovely, and it was my dream also that Supreet is doing this type of podcast. Someday you should have something on health, and I should be there. And I'm very lucky to say that God has given me everything I have wished. Therefore, you must wish that I good things. God will provide everything. मैंने सोचा कभी कि सुप्रीत मुझे भी पॉडकास्ट में बुलाए, and you felt that I can come and we can discuss something, and this has helped me a lot to see that I should also think more on that. सोच रहा था तो आज वो दिन आ गया. हाँ जी, थैंक यू सो मच.